Good morning, students. In Advanced Java Programming, Unit number 2, JDBC Programming. In this session, we will discuss about various types of JDBC driver, which is used to give the connection or establish the connection between our Java application and a database. So, let's start. So the JDBC driver, it means the Java database connectivity drivers, where the API is a set of interfaces independent of the relational database management system. And what is a driver? So driver specific is a RDBMS specific implementation of the API interface for the various database like Oracle, DBMS, DB2, MySQL, and etc. So the whatever the required implementation or interface for to connect the application with the database, driver can provide that particular interface. So just like a Java aim for write once and run anywhere, the same way the JDBC strives for the write once and run with any database. And for that you just need to use the particular JDBC driver according to your database selection process. Whatever the database you are selecting, you just have to do or you just have to select that particular JDBC driver which is related to your database. Okay, so this is the JDBC driver where you just write once and run with any database. Okay, so there is a no need to write again and again for a different database. You just write once and run with any database. Now there are basically four types of Java drivers. Let's see that particular Java drivers one by one. The first driver is a type 1 driver, which is a JDBC ODBC driver, which support for the ODBC driver. It means the open database connectivity, right? So, and one more thing, this is a very important topic regarding your knowledge and also for the GTU examination. Okay, so now the first one is a JDBC ODBC bridge driver which used to connect the Java application with the open database connectivity. Okay, so it is a not a portable. It means it is a not portable. You cannot port the particular driver or you cannot use that particular driver on a different uh, platform. It will translate the JDBC call into the ODBC calls and use the Windows ODBC built-in drivers. Okay, so it is a not a portable, or whenever you do the call to connect with the ODBC driver by using the JDBC, it will convert your call into the ODBC call, which is a built-in call. And as we say that कि जो विंडोज के अंदर जो भी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी का ड्राइवर यूज होता है, जस्ट लाइक कि विंडोज सिस्टम है तो विंडोज सिस्टम में जो बिल्ट इन ड्राइवर है, जब आपकी एप्लीकेशन के थ्रू आप ओडीबीसी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कॉल करोगे, एट दैट टाइम योर कॉल विल बी फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू फ्रॉम अ जेडीबीसी कॉल इनटू द ओडीबीसी कॉल. ठीक है, और जो ड्राइवर आपने यूज किया है उसके बजाय वो जो है वो इनबिल्ड जो विंडोज के अंदर ड्राइवर है उसका यूज करेगा. Next is ODBC must be set up on every client. This is a requirement that if you want to use the open database from your particular system, so each and every client must have a ODBC installed in that in that particular system. So for the server side, serverlets ODBC must be set up on a web server. ये पहली चीज है. दूसरी चीज जो ड्राइवर यूज होता है JDBC
उसका जो नेम है वो है sun.jdbc.odbc.jdbc.odbc and this particular driver it's provided by the Java soft with the JDK. तो JDK जब हम इंस्टॉल करते हैं कि at that time the particular driver already installed हो जाता है, we just needs to specify that particular driver in our program, or by using this particular driver we can call the ODBC driver to connect our application with the database. सो ये जो ड्राइवर का नेम है वो आपको याद रखना है कि जो JDBC और ODBC ब्रिज ड्राइवर है उसमें जो ड्राइवर यूज होता है उस ड्राइवर का नेम है, और वी कैन से द पाथ ऑफ अ ड्राइवर इज sun.jdbc.odbc.jdbc driver, and it will not support from the JDK 1.8 वर्जन, उसमें वो सपोर्ट नहीं करता है। एंड ओपन डेटाबेस की अगर बात करें तो MS एक्सेस जो है वो एक टाइप का ओपन डेटाबेस है, राइट। नाउ द डायग्राम ऑफ टाइप 1 JDBC ODBC ड्राइवर किस तरह से वर्क करेगा, तो कि जो लोकल कंप्यूटर है हमारा उस पे हम एक जावा एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे, डेटाबेस का सर्वर भी होगा, जियो सर्वर है वो इंटरकनेक्टेड रहेगा विद द लोकल सिस्टम, कि जहाँ पे उसके जो वेंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स है उसका यूज करके वो कम्युनिकेट करेगा थ्रू द नेटवर्क। ओके, जावा एप्लीकेशन के अंदर क्या रहेगा कि एप्लीकेशन का कोड रहेगा, जिस कोड में और जिस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, हमें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे क्या होगा कि जावा एप्लीकेशन में हम एप्लीकेशन कोड के थ्रू टाइप 1 ड्राइवर जो है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, राइट, उसके जो भी कोड है वो हम हमारे जावा एप्लीकेशन में प्लेस करेंगे। नाउ द JDBC ODBC ड्राइवर जो है उसके थ्रू क्या होगा कि अगर कोई हम डेटाबेस जो है वो हमारे पर्टिकुलर लोकल सिस्टम के अंदर ही स्टोर है, देन at that time by using the ODBC bridge driver we can call the local database, और उसके लिए जो ड्राइवर यूज होगा वो डेटाबेस वेंडर ड्राइवर यूज होगा, जैसे कि हमने देखा sun.jdbc.odbc.jdbc ODBC ब्रिज ड्राइवर जो पाथ है उसके थ्रू हम एक कोड प्लेस करेंगे, एंड उस कोड के थ्रू हम हमारे लोकल सिस्टम में जो भी डेटाबेस है उसके साथ हमारे एप्लीकेशन का जो भी कनेक्शन है वो हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे। एंड इफ द डेटाबेस विच इज ऑन अ सर्वर साइड, राइट, सो बाय यूजिंग द वेंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल हम डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे और नेटवर्क कम्युनिकेशन के थ्रू हम डेटा को हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे। तो इस तरह से जो है टाइप 1 ड्राइवर वो यूज होता है इन अ जावा एप्लीकेशन। Now the advantage and disadvantage of a JDBC ODBC driver की advantage क्या है कि it allow the communicate with the all types of database which support the ODBC driver। So जितने भी ODBC bridge driver है जो support करते हैं उसके थ्रू हम by using the type 1 driver हम सभी के साथ communicate कर सकते हैं, and it is a vendor independent driver, it means कि जो भी टाइप का डेटाबेस है उस पे वो डिपेंडेंट करता है उसी पर्टिकुलर, जैसे कि ओपन डेटाबेस है तो वो ओपन डेटाबेस को ही सपोर्ट करेगा, उसके अलावा दूसरे कोई भी टाइप का डेटाबेस होगा तो उसको वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो ड्राइवर है वो इंडिपेंडेंट है, वेंडर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो कोई किसी भी वेंडर पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो भी ट्रांसलेशन है वो यूज ट्रांसलेशन है, इट मीन्स कि अगर हमने JDBC के साथ JDBC के थ्रू अगर हम कोई ओपन डेटाबेस को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, एट दैट टाइम क्या होता है कि सबसे पहले जो कॉल जाता है वो हमारा JDBC के टाइप का कॉल होता है, उसके बाद जो भी डेटाबेस है जो ओपन डेटाबेस है उसका जो पर्टिकुलर ड्राइवर है उस ड्राइवर में हमारा जो कॉल है वो ट्रांसलेट होता है, और उसके बाद जाके जो रिजल्ट है वो डेटाबेस में से फेच होगा, उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसलेट होगी। तो
जो ट्रांसलेशन है वो लार्ज नंबर में है, इसीलिए एग्जीक्यूशन स्पीड जो है इसकी वो लिटिल बिट ज्यादा है, राइट। तो सॉरी, जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो लिटिल बिट लो है, कि जो बहुत स्लो एग्जीक्यूट होता है। इट मींस कि जो रिजल्ट फेच होने में जो है वो ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा कि इट विल डिपेंडेंट ऑन ओडीबीसी ड्राइवर। इट मींस व्हेनेवर वी कैन कॉल फॉर द कनेक्टिविटी, फर्स्ट आवर जेडीबीसी कॉल विल कन्वर्ट इनटू द ओडीबीसी कॉल। तो उसके लिए हम जेडीबीसी ड्राइवर यूज नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो विंडो के अंदर इनबिल्ट जो भी ओडीबीसी का ड्राइवर है, हमें उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और ओडीबीसी के लिए जो बाइनरी कोड और उसके क्लाइंट के अंदर उसका जो बाइनरी जो फाइल्स है वो इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, उसकी जो लाइब्रेरी है वो भी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अगर वो इंस्टॉल्ड नहीं है देन वी कैन नॉट यूज जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर टू एक्सेस द ओपन डेटाबेस, एंड इट यूजेस द जावा नेटिव इंटरफेस टू मेक द ओडीबीसी कॉल। तो यहाँ पे जो जावा का जो नेटिव इंटरफेस है, उसके खुद का जो नेटिव इंटरफेस है उसका यूज करता है ओडीबीसी कॉल करने के लिए। तो ये सारे डिसएडवांटेज है जेडीबीसी टाइप 1 ड्राइवर के। बिकॉज ऑफ द लिस्टेड डिसएडवांटेजेस, द टाइप 1 ड्राइवर इज नॉट यूज्ड इन अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, कि जहाँ पे एप्लीकेशन का जो भी प्रोडक्शन रहता है उसमें इसका यूज नहीं होता है। इट कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द डेटाबेस डज नॉट हैव एनी अदर जेडीबीसी ड्राइवर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ये कब यूज होगा? कि जब डेटाबेस के पास कोई अदर जेडीबीसी ड्राइवर इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहेगा और उसके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, देन इट विल यूज द टाइप 1 ड्राइवर। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। तो टाइप 1 ड्राइवर है जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। Now the second type driver is a native code driver. ये जो नेटिव कोड ड्राइवर है, इट विल कन्वर्ट द जेडीबीसी एपीआई कॉल आर कन्वर्टेड इनटू द नेटिव एपीआई कॉल। उसका जो नेटिव जो भी डेटाबेस है उसका जो खुद का जो नेटिव कॉल है और नेटिव जो एपीआई उसमें वो कॉल कन्वर्ट होगा और वो यूनिक रहेगा ईच एंड एवरी डेटाबेस के लिए। These drivers are typically provided by the database vendors and used in the same manner as a JDBC ODBC bridge driver. ठीक है, तो ये जो ड्राइवर है टाइप 2 का वो भी कौन प्रोवाइड करता है? जो भी डेटाबेस का वेंडर है वही वेंडर उसको सेम मैनर में प्रोवाइड करता है जिस तरह से जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर जो भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, सो जो नेटिव कोड है, जैसे कि इसका नेम ही है नेटिव कोड ड्राइवर, जहाँ पे जेडीबीसी कॉल जो है वो कन्वर्ट होता है नेटिव एपीआई कॉल के अंदर। तो एट दैट टाइम जो नेटिव कोड है ड्राइवर वो यूजुअली सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ओके, एंड जो वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर है इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन ईच एंड एवरी क्लाइंट। अगर हमें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करनी है तो उसका वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर जो है, जो भी पर्टिकुलर डेटाबेस है उसका जो भी स्पेसिफिक ड्राइवर है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए क्लाइंट के सिस्टम के अंदर। And the second thing is type 2 driver is a suitable to use with the server side application. Okay, जो भी सर्वर साइड एप्लीकेशंस के थ्रू हम जो भी डेटा की लेन देन करते हैं, डेटा को हम सेंड करते हैं, डेटा को हम अपडेट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं, फेच करते हैं, एक्सेट्रा जो भी टास्क है, ठीक है, उसके लिए जो टाइप 2 ड्राइवर है वो स्पेसिफिक वेरी इट्स अ वेरी सुटेबल। एंड फॉर एन एग्जांपल किस टाइप के डेटाबेस के लिए ये वेरी सुटेबल है? तो कि ओरेकल ओसीआई ड्राइवर है, वेब लॉजिक ओसीआई ड्राइवर है, एंड टाइप 2 ड्राइवर फॉर द सीबेस। तो बेसिकली इन तीन टाइप के जो डेटाबेसेस हैं जो सर्वर साइड मोस्टली रहते हैं, ठीक है, उसके लिए टाइप 2 ड्राइवर जो है वो सुटेबल है। नाउ द डायग्राम और आर्किटेक्चर ऑफ टाइप 2 ड्राइवर की, जिसमें जावा एप्लीकेशन डेटाबेस सर्वर जो वेंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जिस तरह से टाइप 1 ड्राइवर यूज होता था सेम वे यही यूज होगा, ठीक है। तो जावा एप्लीकेशन के अंदर हम टाइप 2 ड्राइवर का यूज करके जो भी एपीआई है नेटिव एपीआई उससे हम डेटाबेस जो भी है लोकल डेटाबेस है तो हम लोकल डेटाबेस को कॉल करवाएंगे। एट दैट टाइम क्या होगा कि जावा एप्लीकेशन के थ्रू हम जब भी कॉल करेंगे बाय यूजिंग द जेडीबीसी, उसके बाद वो हमारा कॉल जाएगा उसके डेटाबेस वेंडर ड्राइवर के पास, और उसका जो काम है वो है कि जो भी जेडीबीसी कॉल आया उसको नेटिव
ड्राइवर के कॉल में और नेटिव एपीआई में उसको कन्वर्ट करना, और उसके बाद जो लोकल डेटाबेस है उसके साथ जो भी कम्युनिकेशन है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा, राइट। और अगर सर्वर साइड है तो वेंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का यूज करके डेटाबेस जो है वो जावा एप्लीकेशन के साथ इंटरकनेक्ट होगा और थ्रू द नेटवर्क जो भी डेटा है वो ट्रांसफर होगा। नाउ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ टाइप 2 ड्राइवर की एडवांटेज है इट इज अ फास्टर देन द जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर एज कंपेयर टू द टाइप 1 ड्राइवर। दिस इज अ लिटिल बिट फास्टर, ओके। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए भी जो वेंडर क्लाइंट लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल्ड रहनी चाहिए क्लाइंट साइड, देन एंड देन वी कैन यूज टाइप 2 ड्राइवर, ओके। इट्स अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बिकॉज इट्स अ नेटिव कोड ड्राइवर, तो जो भी डेटाबेस है उसके रिलेटेड और जो भी प्लेटफॉर्म में वो पर्टिकुलर डेटाबेस यूज होता है उसी प्लेटफॉर्म पे वो डिपेंडेंट रहता है। तो दिस ड्राइवर इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है एंड इट विल सपोर्ट ऑल दी जावा एप्लीकेशंस। जावा के अंदर जितने भी टाइप्स के एप्लीकेशन हम डिजाइन कर सकते हैं वो सभी में ये सपोर्टिव है, बट एप्लेट्स के लिए ये सपोर्टेड है नहीं। एप्लेट ये सपोर्ट नहीं करता है। अगर हमने एप्लेट डिजाइन किया है तो हम नेटिव जो कोड ड्राइवर है टाइप 2 का उसका यूज उसमें नहीं कर सकते एंड इट मे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। इफ इट इज अ नीड्स टू रन ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म सिंस वी मे रिक्वायर्ड बाइंग अ नेटिव लाइब्रेरीज फॉर ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म, बिकॉज की जो भी कॉल रहेगा वो हमारा नेटिव एपीआई के कोड में ट्रांसलेट होगा। तो जिस भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम रन करेंगे तो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट कि हमें जो उसका जो नेटिव लाइब्रेरी है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग वो हमें परचेस करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो उसका जो एप्लीकेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज कर देगा टाइप 2 ड्राइवर। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे टाइप 2 ड्राइवर। उसके बाद आता है टाइप 3 ड्राइवर विच इज अ जावा प्रोटोकॉल ड्राइवर एंड इट इज अ प्योर जावा ड्राइवर। इट मींस कि ये जो टाइप 3 ड्राइवर है वो टोटली इंप्लीमेंट हुआ है जावा लैंग्वेज के अंदर and it will depends on a middleware server. It means it will run as a middleware or it will use as a middleware server के जैसा यूज होता है between the client and a database में, okay। It can interface to multiple database, not a vendor specific. Now this is a totally Java based protocol and इट विल सपोर्ट मल्टीपल डेटाबेसेस और इसके लिए जो वेंडर स्पेसिफिक जो भी डेटाबेस है और वेंडर स्पेसिफिक जो प्रोटोकॉल है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रहती है एंड दिस वन इज अ टायर 3 कम्युनिकेशन अप्रोच कि ये जो है वो 3 टायर कम्युनिकेशन अप्रोच यूज करता है कि जिसमें कनेक्टिविटी के लिए कॉल करना पड़ता है, फिर वो एक्नोलेज एक्सेप्ट करके उसको एक्नोलेज करता है और उसके बाद जाके जो भी कम्युनिकेशन है वो एस्टेब्लिश होता है, right? And the JDBC client use the standard network socket to communicate with a middleware application server. तो जब भी हम हमारी जावा एप्लीकेशन के थ्रू जब भी हम कोई भी डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेंगे फॉर द डेटा एट दैट टाइम जो भी स्टैंडर्ड नेटवर्क सॉकेट है उसका ही यूज करेंगे फॉर द कम्युनिकेशन, ओके, जो हम प्रीवियसली देख चुके हैं। एंड द सॉकेट इंफॉर्मेशन इज देन ट्रांसलेटेड बाय द मिडलवेयर एप्लीकेशन server into the call format required by the database, okay। सो टाइप 3 ड्राइवर का काम क्या है कि जो भी सॉकेट के थ्रू इंफॉर्मेशन आई, इट मींस कि जो भी जावा एप्लीकेशन के थ्रू हमने रिक्वेस्ट की फॉर द डेटा, ठीक है, तो उस जावा एप्लीकेशन के थ्रू जो भी रिक्वेस्ट आई उसको वो क्या करेगा बाद में ट्रांसलेट करेगा किसमें, तो कि जो भी फॉर्मेट रिक्वायर्ड रहेगा फॉर द डेटाबेस, जो भी डेटाबेस आइदर इट्स ओरेकल, माई एसक्यूएल, सीबेस और एक्सेट्रा जो भी हम डेटाबेस यूज करेंगे उसके रिगार्डिंग और उसको एक्सेस करने के लिए जिस फॉर्मेट में जो रिक्वेस्ट चाहिए उसी फॉर्मेट में टाइप 3 ड्राइवर जो एज अ मिडलवेयर यूज होगा वो उसको ट्रांसलेट करेगा। And this kind of driver is extremely flexible since it required no code installation on the client side and a single driver can actually provide the access to the multiple database. So the type 3 driver is a very flexible driver कि जिसमें client side कोई भी installation
राइट। वेंडर स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन की कोई जरूरत है नहीं, और सिंगल ड्राइवर के थ्रू, इट मींस अगर हमारे पास टाइप 3 ड्राइवर है तो उसी टाइप 3 ड्राइवर के थ्रू हम मल्टीपल डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। तो हम सेम रिक्वेस्ट करेंगे हमारी जावा एप्लीकेशन के। अगर हमने हमारी जावा एप्लीकेशन से माई एसक्यूएल के लिए कॉल किया, तो जो मिडलवेयर तरीके एज अ मिडलवेयर सर्वर जो टाइप 3 ड्राइवर यूज होता होगा, वो उसको जो भी एसक्यूएल सपोर्ट करता होगा उसी कॉल के अंदर वो उसको रिक्वेस्ट को कन्वर्ट करेगा। अगर वो ओरेकल है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसलेट करेगा। सो हम एक ही ड्राइवर से मल्टीपल डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद टाइप 3 ड्राइवर का जो डायग्राम है, जो आर्किटेक्चर है, वो कुछ इस तरह से है कि जावा एप्लीकेशन में हम जावा कोड के थ्रू जो टाइप 3 ड्राइवर है, जो नेट प्योर जावा ड्राइवर है, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी डेटाबेसेस हैं उसको हम कॉल कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है कि बाय यूजिंग द जावा एप्लीकेशन वी जस्ट मेक अ कॉल टू एक्सेस अ डेटाबेस। उसके बाद हमारा जो कॉल है वो जाएगा मिडलवेयर सर्वर को, जहां पे हमारा टाइप 3 ड्राइवर जो जावा प्रोटोकॉल है वो वर्क करता है। उसके बाद वो JDBC टाइप 1 ड्राइवर है या तो टाइप 2 ड्राइवर है या तो टाइप 4 ड्राइवर है, किसी भी टाइप का ड्राइवर हो, वो उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर डेटाबेस स्पेसिफिक जो भी फॉर्मेट है उसमें उसको कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद जाके वो डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। और इसी वे से जो हमारा लोकल सिस्टम है जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, उसका और हमारे डेटाबेस सर्वर का जो कम्युनिकेशन लिंक है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। वो किसी भी तरीके का ड्राइवर हो, किसी भी टाइप का डेटाबेस हो, जस्ट मिडलवेयर सर्वर उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा। हमें जस्ट कैसे क्या करना है कि हमें जो है वो JDBC कॉल करना है इसको, मिडलवेयर सर्वर को, और मिडलवेयर सर्वर हमारे उस कॉल को डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल में कन्वर्ट करेगा। सो ये है टाइप 3 ड्राइवर। उसके जो एडवांटेज है ये है कि since the communication between the client and the middleware server is a database independent, there is a no need of any vendor library on a client side। जो हमने प्रीवियसली भी देखा कि किसी भी वेंडर स्पेसिफिक लाइब्रेरी का क्लाइंट साइड इंस्टॉल्ड होना कंपलसरी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली टाइप 3 ड्राइवर उसको कन्वर्ट कर सकता है। And by using a single driver we can handle any type of database by just providing the middleware support for it, जो हमारा टाइप 3 ड्राइवर है। And we can switch from one database to another database without changing the client side driver class। It means कि अगर हमें Oracle से स्विच होके MySQL में आना है और MySQL से स्विच होके किसी अदर डेटाबेस में जाना है, then we need not to change at a client side। क्लाइंट साइड जो ड्राइवर क्लास है उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो टाइप 3 ड्राइवर है उसको कन्वर्ट करेगा। जैसे कि IDS ड्राइवर है, वेब लॉजिक RMI रिमोट मेथड इंटरफेस जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर सारे यूज होंगे। डिसएडवांटेज में ये है कि एज अ कंपेयर टू द टाइप 2 एंड टाइप 3 ड्राइवर are slow due to increased number of the network call। Yes, टाइप 2 और नेट और टाइप 2 ड्राइवर के कंपैरिजन में टाइप 3 ड्राइवर है वो लिटिल बिट स्लो है, कि जहाँ पे जो भी अगर हम स्विच करते हैं एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस स्पेसिफिक डेटाबेस में उसके कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। दैट्स व्हाई एज कंपेयर टू द टाइप 2 ड्राइवर, टाइप 3 ड्राइवर जो है वो लिटिल बिट स्लोअर है। It will require the database specific coding to be done in the middleware tier। It means कि जो भी हमारा टाइप 3 ड्राइवर है जो है, ठीक है, वो किसी भी तरीके का डेटाबेस एक्सेप्ट करता है, बट उसके लिए उसका जो डेटाबेस स्पेसिफिक कोड जो है वो रिक्वायर्ड रहता है कि टाइप 3 ड्राइवर, इट मींस जो मिडलवेयर सर्वर है उसमें वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए, कॉन्फ़िगर होना चाहिए। And the middleware layer added may result in an additional latency।
but it typically overcome by using the better middleware server. Automatically अगर हम किसी भी middleware को बीच में रखते हैं तो it will result in a additional latency को हमें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बीच में एज अ मिडलवेयर यूज होता है, राइट। एंड हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट उसके लिए जो भी हम बेटर मिडलवेयर सर्विस का यूज करें तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे। एंड द लास्ट वन इज द टाइप 4 ड्राइवर विच इज अ डेटाबेस प्रोटोकॉल ड्राइवर। सो इट इज अ नॉन एज अ डायरेक्ट टू द डेटाबेस प्योर जावा ड्राइवर। ये जो है ये प्योर जावा ड्राइवर है जो कंप्लीटली जावा के अंदर लिखा गया है, ठीक है। एंड इट इज नॉन एज अ डायरेक्ट टू डेटाबेस। यहाँ पे किसी भी मिडलवेयर का ऐसा कुछ यूज नहीं होता, ये डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है। सो नीड टू डाउनलोड अ न्यू ड्राइवर फॉर ईच एंड एवरी डेटाबेस इंजन। जो भी डेटाबेस का यूज करते हैं उसके लिए हमें नया ड्राइवर डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ओरेकल यूज करते हैं तो ओरेकल का डेटाबेस इंजन के लिए ड्राइवर हमें डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी, अगर माई एसक्यूएल है तो उसके लिए। So the type 4 driver is a pure Java based driver which communicate directly with the vendor's database through the socket connection. तो यहाँ पे ये जो टाइप 4 ड्राइवर है वो किसी भी मिडलवेयर का यूज नहीं कर रहा है, किसी भी वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर का भी बीच में यूज नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली कॉल करता है वेंडर डेटाबेस को थ्रू द सॉकेट कनेक्शन। एंड दिस काइंड ऑफ ड्राइवर इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, कि बीच में किसी भी मिडलवेयर का और किसी का भी जरूरत नहीं पड़ता है। सो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ऑन अ क्लाइंट और अ सर्वर साइड। So there are no any special installation required at a client and a server side to communicate with the database, and such driver are implemented by the database vendor. Okay, and उसका जो डायग्राम है वो सिंपल है कि जावा एप्लीकेशन में अगर आप प्योर 100% प्योर जावा ड्राइवर टाइप 4 जो है उसका यूज करते हो तो आप डायरेक्टली डेटाबेस को कॉल कर सकते हो। अगर सर्वर साइड है तो बाय द वेंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो ओवर द नेटवर्क। तो इस तरह से टाइप 4 ड्राइवर जो है वो रन होगा। इसके जो एडवांटेज है वो है कि ये कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड इन जावा, सो इट इज अ प्योर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये डिपेंडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्योरली रिटन इन जावा विच इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। There is a no native library required to install in a client machine. So this driver don't translate any request into the intermediary format. It means कि जैसे कि ODBC में कन्वर्ट करना पड़ता था JDBC को, और ऐसा कोई ट्रांसलेशन यहाँ पे परफॉर्म की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली है, डायरेक्ट टू द डेटाबेस है। इट मींस ये डायरेक्ट डेटाबेस से साथ ही कम्युनिकेट करेगा, वो किसी भी कॉल को XYZ किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करेगा। एंड सिक्योर टू यूज सिंस इट इज यूज द डेटाबेस सर्वर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। जो भी डेटाबेस का जो भी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है उसका ही यूज करता है, तो ये सिक्योर है। एंड the client application connect directly to the database server and there is a no translation or a middleware used, and that's why it जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव्ड होगा। एंड जो भी एप्लीकेशन से लेके डेटाबेस तक का जो भी कम्युनिकेशन है वो सारा का सारा जो जावा वर्चुअल मशीन है वही मैनेज करेगा, ठीक है। इसके लिए किसी भी स्पेसिफिक लाइब्रेरी का और इसका हमें यूज नहीं करना है टू मैनेज द कॉल। डिसएडवांटेज यही है कि इस जो डेटाबेस है वो डेटाबेस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का यूज करता है एंड इट इज अ डेटाबेस वेंडर डिपेंडेंट। जैसे कि किसी भी डेटाबेस का जो भी वेंडर स्पेसिफिक जो भी कोड है वो इस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही एक स्पेसिफिक डिसएडवांटेज है टाइप 4 ड्राइवर का। तो ये हो गए हमारे चारों के चारों ड्राइवर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 ड्राइवर। अब हम यहाँ पे उसका कंपैरिजन देखेंगे कि कौन से टाइप का ड्राइवर है वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो भी नेम है चारों के चारों के, उसमें टाइप 1 जो है वो JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर है। टाइप 2 जो भी है वो नेटिव कोड ड्राइवर है। टाइप 3 जो जावा प्रोटोकॉल और मिडलवेयर
driver है and type 4 is a database protocol purely written in a Java. किसमें वेंडर स्पेसिफिक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी? तो टाइप 1 में तो वेंडर स्पेसिफिक नहीं है टाइप 1। टाइप 2 जो है वो वेंडर स्पेसिफिक है। टाइप 3 जो है वो भी वेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइप 4 जो भी है वो वेंडर स्पेसिफिक है, कि जहाँ पे वेंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। कौन सा ड्राइवर पोर्टेबल है? क्योंकि टाइप 1 पोर्टेबल नहीं है, टाइप 2 भी पोर्टेबल नहीं है। टाइप 3 एंड टाइप 4 जो रिटर्न इन जावा वो ही पोर्टेबल है, कि जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको स्विच कर सकते हो। प्योरली जावा ड्राइवर टाइप 3 एंड टाइप 4 है, टाइप 1 टाइप 2 नहीं है। जो वर्किंग है वो किस तरह से है कि जब भी हम हमारे डेटाबेस हमारी जावा एप्लीकेशन से डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, एट दैट टाइम क्या होगा कि सबसे पहले जो जेडीबीसी कॉल है वो ओडीबीसी कॉल में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद जो ओडीबीसी कॉल है वो नेटिव कॉल के अंदर कन्वर्ट होगा, कि जहाँ पे जो भी स्पेसिफिक डेटाबेस हम यूज करेंगे। टाइप 2 ड्राइवर में डायरेक्टली हमारा जेडीबीसी कॉल जो है वो नेटिव कोड के अंदर, जो नेटिव स्पेसिफिक कॉल है उसमें कन्वर्ट होगा। टाइप 3 ड्राइवर में क्या करेगा कि टाइप जब भी हम जेडीबीसी के थ्रू हम कॉल करेंगे कनेक्टिविटी के लिए, वो सबसे पहले वेंडर स्पेसिफिक नहीं बट मिडलवेयर स्पेसिफिक जो भी है उस के पास जाएगा, और वो मिडलवेयर जो है वो जिस भी टाइप का डेटाबेस होगा उसके नेटिव कॉल में उसको कन्वर्ट करेगा। एंड टाइप 4 ड्राइवर वो सबसे इजी वाला है, कि जहाँ पे जेडीबीसी कॉल हमारा डायरेक्टली डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वर्किंग है चारों के चारों ड्राइवर के। मल्टीपल डेटाबेस के लिए टाइप 1 ड्राइवर है वो यूज होता है कि ओनली ओडीबीसी सपोर्टेड डेटाबेस ही आप मल्टीपल डेटाबेस यूज कर सकते हो, बट कैसे कि जो ओडीबीसी सपोर्ट करते हो डेटाबेस वही। टाइप 2 ड्राइवर मल्टीपल डेटाबेस सपोर्ट नहीं करता है। टाइप 3 ड्राइवर जो है वो मल्टीपल डेटाबेस को सपोर्ट करता है। इट मींस आपने जब भी कॉल किया तो एट दैट टाइम आप उस कॉल को मल्टीपल डेटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू द मिडलवेयर, बट टाइप 4 ड्राइवर वो भी मल्टीपल डेटाबेस सपोर्ट नहीं करता है। आप जिस भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो आप एक ही डेटाबेस को एट अ टाइम सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद जो एग्जांपल है वो है टाइप 1 ड्राइवर में जो ओपन डेटाबेस है वो एमएस एक्सेस है। टाइप 2 में ओरेकल ओसीआई ड्राइवर, टाइप 3 में आईडीए सर्वर का यूज होता है। टाइप 2 ड्राइवर का जो एग्जांपल है जिसमें माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज होता है। एंड एग्जीक्यूशन स्पीड टाइप 1 की सबसे स्लोएस्ट है। टाइप 2 है वो टाइप 1 से लिटिल बिट फास्टर है। टाइप 3 जो है वो लिटिल बिट स्लोअर है एज कंपेयर टू द टाइप 2। एंड टाइप 4 ड्राइवर जो है वो सबसे टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 तीनों से फास्टर है। एंड ड्राइवर जो है वो टाइप 1 ड्राइवर है वो थिक ड्राइवर कहा जाता है। टाइप 2 ड्राइवर भी थिक है। टाइप 3 एंड टाइप 4 ड्राइवर थिन ड्राइवर है। थिन मींस पतला, पतला यानी कि वो डायरेक्ट जो भी कॉल है वो जेडीबीसी से मिडलवेयर और मिडलवेयर से डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल में, और टाइप 4 तो डायरेक्टली डेटाबेस स्पेसिफिक में कन्वर्ट करता है, इसलिए ये दोनों थिन ड्राइवर है। As compared to that particular type 3 and type 4, type 1 and type 2 is a thick driver जो थोड़ा से मोटे हैं, क्योंकि वहां पे जो भी कॉल है वो नंबर्स ऑफ टाइम ज्यादा ट्रांसलेट होते हैं, दैट्स व्हाई। तो ये थे कंपैरिजन। उसके बाद देखते हैं लास्ट पॉइंट विच इज अ विच ड्राइवर शुड बी यूज्ड, कब कौन सा ड्राइवर यूज होता है। सो इफ यू आर एक्सेसिंग वन टाइप ऑफ डेटाबेस जैसे कि माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, सी बेस है और आईबीएम, अगर आप स्पेसिफिकली एक ही टाइप का ड्राइवर यूज करते हो देन यू कैन प्रीफर टाइप 4 ड्राइवर टू कम्युनिकेट। अगर आप जावा एप्लीकेशन के अंदर is accessing the multiple type of databases at a same time then type 3 driver is a preferable driver। ठीक है। टाइप 2 ड्राइवर आर यूजफुल इन अ सिचुएशन कि जहाँ पे टाइप 3 एंड टाइप 4 ड्राइवर जो अवेलेबल नहीं है येट फॉर योर डेटाबेस, then and then you can use the type 4 type 2 driver। And type 1 driver is a not considered as a deployment level driver and is a typically used for the development and the testing purpose only।
तो अगर आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन लेंगे, जैसे टेस्टिंग कर रहे हो और डिप्लॉयमेंट लेवल पे आप अगर देखना चाहते हो कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, then and then you can use the type 1 driver. Otherwise you can use mostly type 4 driver. अगर आप वन टू वन कम्युनिकेशन चाहते हो, मल्टीपल एक्सेस करना चाहते हो तो टाइप 3 ड्राइवर। एंड जब 3 और 4 दोनों सपोर्टिव नहीं है, then and then you can use the type 2 driver and for the testing purpose type 1 driver. So आज के सेशन के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कौन से डेटाबेस जो भी RDBMS के अंदर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं हमारी जावा एप्लीकेशन को, तो कौन सा ड्राइवर हम यूज करेंगे JDBC, उसका नेम क्या है और उसका URL फॉर्मेट क्या है कि जो हम हमारी जावा एप्लीकेशन में कोड के एज अ कोड हम उसको यूज करेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है टू मेमोराइज। सबसे पहला है, अगर हम MySQL डेटाबेस का यूज करते हैं तो उसके ड्राइवर का जो नाम है वो है com.mysql.jdbc.driver और उसका जो URL फॉर्मेट है कि जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं डेटाबेस में, वो है JDBC:MySQL:/, उसके बाद होस्ट का नेम, उसके बाद स्लैश करके डेटाबेस का नेम जिस डेटाबेस के साथ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओरेकल है तो oracle.jdbc.driver ड्राइवर और उसका जो फॉर्मेट है वो है JDBC:/oracle:/thin करके होस्ट का नेम वो पोर्ट नंबर है जिसका हम यूज करेंगे एंड करके डेटाबेस का नेम। उसके बाद अगर DB2 डेटाबेस है तो com.ibm.db2.jdbc.net.db2 ड्राइवर और उसका जो URL फॉर्मेट है वो है JDBC:/db2 होस्ट का नेम पोर्ट नंबर स्लैश करके डेटाबेस का नेम। Cbase है तो com.cbase.jdbc.cb ड्राइवर, ठीक है। और उसका जो URL फॉर्मेट है वो है JDBC:/cbase TDS होस्ट का नेम करके पोर्ट का नंबर। SQLite है तो oracle.sqlite.jdbc और URL फॉर्मेट है JDBC:/SQLite:/c/ करके SQLite/db/database का नेम। एंड SQL सर्वर है एट दैट टाइम द com.microsoft.sqlserver.jdbc.sql server ड्राइवर और जो URL फॉर्मेट है वो है JDBC:/Microsoft:/SQL server / करके होस्ट नेम पोर्ट का नंबर कोमा करके डेटाबेस का नेम। तो ये सारे डेटाबेसेस है और उसके रिगार्डिंग जो भी ड्राइवर का नेम यूज होता है इन जावा एप्लीकेशन, वो पर्टिकुलर नेम है और ये है उसकी URL फॉर्मेट कि जिस फॉर्मेट और जिस URL के थ्रू हम हमारी एप्लीकेशन और जो भी डेटाबेस है उसके साथ लिंक एस्टेब्लिश कर सकेंगे फॉर दी कम्युनिकेशन। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट है देन जस्ट लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।